Hello everyone, this is Professor Jagdish Pimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. Okay, so very good morning to one and all. In the previous video, we have already gone through the shell sort method. We have seen what do you mean by shell sort, how we are going to sort the given set of element using shell sort, how we can implement the shell sort function. And prior to that, we have already seen about the quick sort, insertion sort, bubble sort, selection sort. In today's video, we are going to see about the heap sort method. So basically what it means a heap sort method. Heap sort method, it is also one of the sorting techniques under the internal sorting methods. Heap sort, it is also one of the sorting techniques comes under the internal sorting techniques. It means that heap sort will be worked on a limited amount of data. Whatever sorting techniques are comes under the internal sorting techniques or internal sorting categories. It means that all these sorting techniques are used for limited amount of data. So basically what the heap sort will do, or what is the principle, or what is the fundamental idea behind the heap sort method. Basically heap sort method will be uses the concept of binary tree. Heap sort technique uses the concept of binary tree, or it will be based on the binary tree mechanism. So basically what it means a binary tree. Before that we will know about a tree. You are having the tree is a separate unit. At that time it will more clear. But time being I will tell you some points related to tree as well as the binary tree, because the binary tree concept will be utilized for sorting the data element using the heap sort. So basically tree is nothing but it is a non-linear data structure. As I already told you in the very first lecture when we see the categories of data structure. So tree is a one kind of non-linear data structure. Why it is a non-linear data structure? Because in tree the data are stored in a scattered manner. In case of sequential order, the data are stored in a in a sequence manner. That is one below the other or one above the other. Sequential means the data will be stored in a one sequence, that is in a sequential format, one after another data we are going to organize or we are going to store the data. Whereas in non-sequential or in a non-linear data structure, the data are stored in a scattered manner. That is, one data is here, another data is somewhere else, another data is somewhere else, another data is somewhere else, and so on. So under the categories of non-linear data structure, we are having two types of data structure. Or there are two examples of non-linear DS. One is tree data structure and another is graph data structure. So tree is one kind of non-linear data structure because in tree the data is stored in a non-sequential one. If you're talking about a tree, if you're talking about a normal tree, जो हमारे घर में पेड़ होता है, if you're talking about a tree, so every tree is having the special node or every tree is having the root. इसको हम लोग बोलते हैं root होता है, हर एक ट्री में एक root होता है and that root is having the number of leaves. उस tree को क्या होते हैं, number of leaves होते हैं. It means that what, suppose if you're talking about a tree, suppose this one is the root of the tree, ये tree का root है, ये आपका root है, and यहाँ से there are having the number of leaves, यहाँ से इस तरीके से leaves बाहर निकली हुई, that means number of leaves are there. Consider this is an example, and number of leaves are there. Suppose this one is the first leaf, this one is the second leaf, this one is your third leaf, this one is your fourth leaf, this one is your fifth leaf, and so on. Number of leaves are there. It means that suppose if you want to visit all the leaves at a time, it would not be possible. You can go or you can visit a particular leaves at a time. आप अगर आपके पास एक ट्री है, एक पेड़ है, तो पेड़ में
में बहुत सारे लीव्स हैं, ठीक है। अगर एट ए टाइम विजिट करना है तो आप एक फांदी पे जा सकते हो, एक लीव्स पे आप जा सकते हो। यू कैनॉट विजिट एवरी लीव एट ए टाइम, ठीक है। So that means the leaves are scattered. The leaves are scattered. That means the tree always comes under a non-linear data structure because in tree the data are stored in a scattered manner. If you're talking about a normal tree, अगर normal tree की मैं बात करता हूँ, it is of technical word. अगर मैं technical word में बात करता हूँ, so suppose you can see over here. Here what happened? So your tree goes to the depth. Always tree goes to the depth. Suppose ये आपका वन रूट है, ठीक है, ये आपका वन रूट है, यहाँ पे this one is your root, then again this one is the child, this one is the child, again then 12 is having the child, 5 and 6, again 9 is having the child, 10, likewise. That means so trees will go in a depth. आपका ट्री हमेशा डेप्थ में जाता है. That means every tree is having a node. हर एक ट्री में स्पेशल नोड होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं. Every tree is having a special designated node called as a root node. रूट से सारी लीव्स बाहर होती है. जैसे यहाँ पे वन, if you consider वन एज अ रूट नोड, अगर ये मेरा वन आपका रूट नोड है तो ये ट्री नीचे डेप्थ में गया हुआ है. So one is having the two child, that is 12 and 9. Then again 12 is having the two child, that is 5 and 6. Again 9 is having the one child, that is 10. So that is means that tree will be in the form of this structure. Okay, tree इस तरीके से होता है. So how you can say tree is a non-linear data structure, because tree में data क्या होता है, scattered manner में होता है. एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा कहीं और है, चौथा कहीं और है, इसलिए tree को non-linear data structure बोला जाता है. So in case of heap sorting की अगर बात करते हैं, so in case of a heap sorting we are using the concept of binary tree. So अभी tree और binary tree में difference क्या होता है? तो ट्री में क्या होता है कि वन पर्टिकुलर नोड कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ चाइल्ड. आपके एक ट्री का जो नोड होता है, आपका जो नॉर्मल ट्री होता है, तो नॉर्मल ट्री में जो आपका एक नोड होता है विच इज हैविंग द n नंबर ऑफ चाइल्ड. दैट मींस अगर आपका यहाँ पे कोई अगर आपका एक नोड है, फॉर एग्जांपल सपोज अगर यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे आपने कोई नोड दिया हुआ है, सो दैट पर्टिकुलर नोड इज हैविंग द n नंबर ऑफ चाइल्ड. एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और somewhere else likewise. ऐसे इस तरीके से आपके पास नोड दिए हुए हैं. सपोज एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, likewise. The particular node is having the n number of child. There is no restriction at all. In case of a normal tree, normal tree में जो nodes होते हैं वो उसके लिए कोई restriction नहीं होता. That means the particular node is having the n number of child. There is no restriction at all. But in case of a binary tree, the every node is having some restrictions for a child. Every node is having some sort of restriction. Binary tree जो होता है, so binary tree का definition ही ये है कि binary tree it is also one kind of tree, but it will satisfy some sort of condition. इसमें कुछ condition satisfied करना चाहिए. So what are these conditions? वो conditions कौन सी होती है? So every node satisfies some sort of condition. That means the particular node is having 0 child, 1 child or maximum 2 child. एक जो नोड होता है उसको एक तो चाइल्ड नहीं हो सकते, या तो उसको एक लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, या तो उसको एक राइट चाइल्ड हो सकता है, लेकिन दो के ऊपर तीसरा चाइल्ड नहीं हो सकता. कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस तरीके से एक नोड है आपका, ये एक नोड है, इस नोड को ये नोड को हो सकता है कि चाइल्ड है ही नहीं, ये नोड को चाइल्ड है ही नहीं. That will be the condition true. ये एक नोड आपका बाइनरी ट्री हो सकता है, ये एक नोड आपका बाइनरी ट्री आप इसको कहला सकते हो. ठीक है. The particular node is having one child. हो सकता है कि इसको एक लेफ्ट चाइल्ड हो, इट में पॉसिबल हो सकता है इसको एक लेफ्ट चाइल्ड हो, या फिर हो सकता है इसको एक राइट चाइल्ड हो, या फिर हो सकता है इसको एक राइट चाइल्ड हो, या फिर हो सकता है इसको दोनों चाइल्ड हो, लेफ्ट भी हो और राइट भी हो. दैट मींस इसको लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता है एंड राइट चाइल्ड भी हो सकता है. दैट मींस द कंडीशन फॉर बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री में क्या होता है, एक तो उसको चाइल्ड नहीं भी रह सकते तो उसको आप बाइनरी ट्री बोल सकते हो, या तो हो सकता है कि उसको एक ही चाइल्ड हो, दैट मींस लेफ्ट चाइल्ड हो या फिर राइट चाइल्ड हो, दोनों में से कोई भी चाइल्ड हो सकता है, या फिर उसको मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो, लेफ्ट चाइल्ड हो और राइट चाइल्ड हो. दैट मींस द पर्टिकुलर नोड इज हैविंग लेफ्ट चाइल्ड or a right child or both left as well as right child.
दैट मीन्स द बाइनरी ट्री। ओके, सो बाइनरी ट्री में क्या होता है कि पर्टिकुलर नोड जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड हो सकते हैं। एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। दो से ज्यादा नहीं हो सकते, इसीलिए इसको बोला जाता है बाइनरी ट्री। बाइनरी का मतलब होता है 2, दैट मीन्स द पर्टिकुलर नोड इज हैविंग एट द मोस्ट 2 चाइल्ड। दो से ज्यादा नहीं, दो से कम हो सकते, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकता है। So when we are using the concept of heap sort, or whenever we are going to sort the data element using the heap sort, so by sorting the data using the heap sort, we need to use the concept of binary tree. What we have to use? We have to use the binary tree concept. So everybody clear what do you mean by binary tree? So binary tree means it is a tree where every node satisfies some sort of condition. The condition is every node consists of 0 child, 1 child or a 2 child. इससे ज़्यादा नहीं, not more than that will be permitted. Okay, so will be use a binary tree concept. So whenever we are going to sort the data element using heap sort, so first of all the very basic thing is you have to construct a binary tree for the given data. जो भी data आपको given है, जो भी elements आपको दिए गए हैं, you have to construct a binary tree for the given data elements. Now, how we are going to create the binary tree, I will tell you in the next slide. Okay. Now, what is the complexity for binary tree? Okay. The complexity for binary tree is big of n log n. Okay. Why it is big of n log n? Because we are constructing the tree. Okay. And every time we are going to comparison. Okay. एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड, दैट मींस पर्टिकुलर नोड होता है, फिर उसको जो पर्टिकुलर अरे है उसके आपके दो इसमें डिवाइड हो जाएगा, दैट मींस द पर्टिकुलर नोड इज गिवन। ठीक है, सो आप क्या करते हो कि आपकी जो अरे है उसको ट्री स्ट्रक्चर में जब डिवाइड करते हो, ठीक है, सो पहले रूट होगा, फिर इसके दो चाइल्ड होंगे, फिर इसके दो चाइल्ड होंगे, फिर इसके दो चाइल्ड होंगे, सब ऐसे डिवाइड करते जा रहे हो। यू आर डिवाइडिंग द डेटा, आप डेटा को डिवाइड करते जा रहे हो, और जब भी आप डेटा को डिवाइड करते हो, सो यू ऑलरेडी नो उस टाइम पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, एंड big of log n, that means big of n log n is the complexity for heap sort method. Now the very step is we are going to construct a binary tree. Now we'll see in the next slide how we are going to construct the binary tree. Now suppose one example is given to you. Okay. So very first thing is, what is the algorithm for sorting the data element using heap sort? So what algorithm we are going to use? The very first step to sort the data element using heap sort is you have to build a heap tree. Build a max heap tree or min heap tree. There are two types of heap tree. दो टाइप्स के heap tree होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका max heap tree, तो दूसरा होता है आपका min heap tree. अब ये max heap tree क्या होता है और min heap tree क्या होता है? We'll tell you about that. When you want to sort the data in ascending order, जब आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, सो एट दैट टाइम यू हैव टू क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ, और यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स हीप ट्री। जब आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, दैट मींस लोवेस्ट टू हाईएस्ट, सो एट दैट टाइम यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द मैक्स हीप ट्री, मैक्स बाइनरी हीप ट्री यू नीड टू कंस्ट्रक्ट। बट अगर आपको डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, अगर डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, so you have to create a mean heap tree. Got the point? Max heap tree कब बनाओगे? जब आपको डेटा असेंडिंग में सेट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब आपको डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, so at that time you have to construct a mean heap tree. So how to construct a mean heap tree and max heap tree, I will tell you in the next slide. Okay? The very first step is you need to create the heap tree, or you need to create a binary tree. And the second point, what is the second point then? Second point क्या बोलता है? At this point, the largest item is stored at a root position. यानी आपका जो ट्री बनेगा, वो ट्री में से आपको हाईएस्ट एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है और उसको आपको रूट पे प्लेस करना है। What you have to do, जो भी आपका ट्री बनेगा, वो ट्री में से आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है। अगर आप मैक्स ट्री बना रहे हो, आप डेटा अगर असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हो, so what you have to do, you have to find out the maximum element, लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्री। आपका जो ट्री बनाया है आपने, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना है और वो सबसे आपको रूट में जाके प्लेस करना है। जो आपका रूट है ट्री का,
जहां से आपका ट्री बिगिन हो रहा है वो ट्री में आपको वो पर्टिकुलर रूट में आपको डेटा आपको प्लेस करना है। सो ये डेटा प्लेस कैसे करना है, जैसे जब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर over there. Okay, so the second step is you have to find out the maximum element or the largest element from the given tree and put on the root node. And the very second step, जो भी root node पे जो value आएगा, that root node is having the highest element from the given set of array. So जो भी आपका root में जो element आएगा, you have to replace that array, replace that data element with the last element of the array. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अरे बनाना पड़ेगा और जो आपका रूट नोड पे जो वैल्यू आया उसको सबसे आखिरी में प्लेस करना पड़ेगा। दैट मींस जो सबसे रूट में जो आपको वैल्यू मिला है दैट विल बी द हाईएस्ट एलिमेंट एंड वो हाईएस्ट एलिमेंट आपको सबसे आखिरी अरे के सबसे आखिरी पोजीशन पे आपको सेट करना पड़ेगा। दैट मींस वो डेटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। देन रिपीट द स्टेप टू व्हाइल द साइज ऑफ द हीप इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब तक आपका साइज आपके ट्री का ग्रेटर देन 1 है तब तक आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, जब तक आपके ट्री के सारे एलिमेंट सॉर्टेड नहीं हो जाते, जब तक आपके अरे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड नहीं हो जाते, तब तक आपको ये प्रोसेस चलाना है। विल टेल यू द एग्जांपल। नाउ सी, सपोज द एलिमेंट्स आर गिवन लाइक वाइज। आपको एक अरे में डेटा गिवन है। ठीक है, सपोज द अरे एलिमेंट्स आर गिवन टू यू। आपको इस तरीके से अरे के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दैट इज 1 12 9 5 6 एंड 10। ये डेटा आपको दिया हुआ है and if you ask to sort the given set of data element using the heap sort method in ascending order, आपको डेटा दिया गया है 1 12 9 5 6 एंड 10। ये डेटा गिवन। अभी आपको ये डेटा को सॉर्ट करना है using the heap sort method. Now how you are going to sort the given data sets or given data elements using the heap sort method? The very first step is you need to construct a binary tree. You need to construct a binary heap tree. आपको क्या करना है, पहले binary heap tree create करना है। ठीक है, so binary heap tree कैसे बनाएंगे? What is the very first element? First element is 1. First element is 1. Okay, so you have to create a one node. आप एक node create करिए। The data of that node is 1. उसके अंदर आपने एक 1 लिख दिया। ठीक, now second element कौन सा है? 12। सेकेंड एलिमेंट इज 12। फिर 12 कहां पे जाएगा? 12 कहां पे जाएगा? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एवरी बाइनरी ट्री नोड इज हैविंग मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हर एक नोड को मैक्सिमम 2 चाइल्ड आपको देना है। ठीक है, सो 12 आया तो 12 आपने क्या कर दिया, 12 आपने 1 के लेफ्ट में 12 डाल दिया। ठीक है, पहले 1 था, एक नोड आपने बनाया उसमें 1 डाल दिया, फिर 1 के पास लेफ्ट और राइट है तो उसके 1 के लेफ्ट में आपने क्या डाल दिया, 12 डाल दिया। 1 के लेफ्ट में आपने 12 डाल दिया। फिर नाउ द सेकंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 9। उसके बाद का एलिमेंट क्या है, 9 है। फिर 9 क्या जाएगा? ठीक है, आपने 1 के लेफ्ट में क्या डाल दिया, 12 डाल दिया, तो फिर 1 के राइट में आप क्या डाल दोगे, 9 डाल दोगे। दैट इज जो 1 नोड है उसके लेफ्ट और राइट दोनों अभी कवर हो गए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट? नेक्स्ट एलिमेंट इज 5। 9 के बाद क्या है, 5। अभी 5 कहां जाएगा? ठीक है, देखिए फिर 5 का जाएगा, देखिए 1 के पास 12 हो गया और 9 भी हो गया। अभी नाउ स्टार्ट विद 12। अभी 12 से स्टार्ट करो, फिर 12 के लेफ्ट में क्या डालोगे आप, 5 डालोगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक एक लेवल आपको कंप्लीट करते चलना है। ठीक है, तो 12 के लेफ्ट में क्या डाल दिया आपने, 5 डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 6। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 6। तो 6 कहां पे जाएगा? ठीक है, अभी 12 का एक ही लेफ्ट कंप्लीट हुआ था 5। अभी 12 के राइट में आप क्या डाल दो, 6 डाल दो। 12 के राइट में हमने 6 डाल दिया। ठीक है, यानी 12 जो नोट था उसका लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया, राइट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ अभी टर्न आएगा 9 का, जो 9 डेटा है उसमें, ये वाला जो नोड है इसमें। अभी नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, 10। सो अभी ये 10 कहां पे जाएगा, 10 कहां पे जाएगा, ये 10 जाएगा 9 के लेफ्ट में, यानी 9 के लेफ्ट में क्या जाएगा आपका, 9 के लेफ्ट में आपका 12 जाएगा। सो आपके ये जो 9 के लेफ्ट में क्या जाने वाला है, ये 9 के लेफ्ट में आपका 12 जाएगा। सी यहाँ पे 9 के लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको, 9 के लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बनाते हैं, हिप ट्री बनाते हैं। यानी अभी आपने बाइनरी ट्री बनाते हैं। सो एवरीबॉडी गॉट इट कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री। जस्ट जो नोड है, जो सीक्वेंस में आपको नंबर्स मिले, जस्ट पहला नंबर लो, उसके लेफ्ट में डालो, उसके राइट में डालो, फिर उसके लेफ्ट में, फिर उसके राइट में, फिर एक एक आपको लेवल कंप्लीट करते चलना।
गॉट द पॉइंट? दैट मीन्स कैसे करेंगे कि सपोज ये आपका पहला डेटा है, यहाँ पे एक पहला डेटा होगा, फिर इसके दो नोड आपने बना लिए, उसके दो नोड आपने बना लिए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो दूसरा ये बन गया। फिर आप क्या करोगे, फिर इसके दो नोड बनाओगे, यहाँ पे डेटा डालोगे, इसके दो नोड बन गए, ठीक है, ये नोड बन गया, ये नोड बन गया। फिर ये कवर होने के बाद फिर इसके दो नोड बनाना है आपको, ये नोड बनाओगे, फिर इस तरीके से यहाँ पे दो नोड आ गए, यहाँ पे दो नोड आ गए। फिर क्या करोगे, फिर इसके दो नोड बनाना है इस तरीके से, यहाँ पे डेटा डालोगे, फिर इसके दो नोड देना है, यहाँ पे डेटा डालना है, फिर इसके दो नोड बनाना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करते चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो भी आपको डेटा गिवन है उसका आपने ये बाइनरी ट्री फॉर्म कर दिया। वंस यू कंस्ट्रक्ट टेक द बाइनरी ट्री, एक बार आपका बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन हो गया, द नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, वंस यू कंप्लीटेड विद द फर्स्ट स्टेप, आपने बाइनरी ट्री बना लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका ट्री बनेगा जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लोवेस्ट लेफ्ट साइड, आपका जो लेफ्ट साइड है उससे आपको नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डेटा। जो भी डेटा आपने, जो भी आपका ट्री बनाया उसमें से आपको मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट नंबर निकालना, तो कैसे निकालते, तो ऑलवेज यू हैव टू थिंक, रूट में हमेशा बड़ा एलिमेंट होना चाहिए रादर देन विथ इट्स चाइल्ड। व्हाट यू हैव टू थिंक कि जब भी आप जो डेटा है, ठीक है, जैसे आपका जो ट्री है, ट्री में जो रूट नोड होता है उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, मैक्सिमम डेटा होना चाहिए रादर देन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स चाइल्ड। यानी सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्या है, 7, सपोज कंसीडर यहाँ पे आपका 7 है, 7 के बाद इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में 2 है, और इसके राइट में क्या है, इसके राइट में 4 है। सो 7 ऑलरेडी बड़ा है 2 से और 4 से, तो नो चेंज, 7 ऑलरेडी बड़ा है। रूट में जो डेटा है, जैसे फर्स्ट सिनेरियो चेक करिएगा, यहाँ पे फर्स्ट रूट में क्या है, 7 है, और उसके लेफ्ट में 2 है, और उसके लेफ्ट में क्या है, 4 है। तो भी चेक करो रूट में जो डेटा है, रूट में क्या है, रूट इज हैविंग द डेटा एलिमेंट 7, तो चेक करो कि 7 से उसके लेफ्ट और राइट में कोई बड़ा एलिमेंट है। यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द whether the particular left child and root child is having the highest data as compared to with its root data, ठीक है। रूट में जो डेटा है वो डेटा से आपके लेफ्ट और राइट में क्या बड़ा डेटा है, चेक करो, तो 7 के लेफ्ट में 2 है, 7 के राइट में 4 है, तो ऑलरेडी 2 भी छोटा है और 4 भी छोटा है 7 से, तो देयर इज नो चेंज, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। नाउ सेकंड केस, अभी सेकंड केस देखते हैं, सेकंड सिनेरियो। नाउ सपोज रूट में आपके पास 2 है, रूट में आपके पास क्या है, 2 है, और लेफ्ट में 7 है, और राइट में क्या है, 4 है। रूट में 2 है, लेफ्ट में 7 है, राइट में 4 है, तो 2 से 7 भी बड़ा है और 4 भी बड़ा है, 2 से 7 भी बड़ा है और 4 भी बड़ा है। सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा नंबर है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा नंबर है आपका, 7 है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, 7 है। तो अभी क्या करोगे आप, ये 2 को इधर शिफ्ट करोगे और 7 को क्या करोगे, 2 की जगह लेके जाओगे, दैट मींस आप 7 को यहाँ पे लेके जाओगे और 2 को नीचे लेके आओगे। दैट मींस देखिए 7 आपने ऊपर शिफ्ट कर लिया और जहाँ पे 7 था वहां उस जगह पे आपने 2 ला दिया। दैट मींस व्हाट इज द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो, यू हैव टू चेक कि जो रूट है वो रूट में बड़ा एलिमेंट चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स चाइल्ड। यानी आप देखो कि चाइल्ड में जो डेटा है क्या वो रूट से बड़ा डेटा है, अगर बड़ा डेटा है तो आपको क्या करना है, वो रूट में शिफ्ट करना है, रूट का डेटा चाइल्ड में शिफ्ट करना है। गॉट इट, ठीक है। सो दीज आर द टू सिनेरियोस हाउ वी आर गोइंग टू डू। नाउ नेक्स्ट विल सी जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। नाउ द टोटल एलिमेंट्स आर 6, 1, 12, 9, 5, 6 and 10. The very first thing is that you need to construct a binary tree. आपको क्या करना है, बाइनरी ट्री बनाना है। तो आपको बाइनरी ट्री बनाना है, सो आपका ये जो बाइनरी ट्री है, so see here, now suppose data is given likewise 1, 12, 9, 5 and 6 and 10, ये इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपने इसका बाइनरी ट्री बना लिया, ठीक है। पहले 1 डाला, फिर 1 के लेफ्ट में 12 है, 1 के राइट में 9 है, फिर 12 के लेफ्ट में क्या गया, 5 गया, 12 के राइट में 6 गया, और फिर बचा हुआ 10 है,
तो 9 के लेफ्ट में क्या डाल दिया आपने, 10 डाल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वी हैव कंस्ट्रक्टेड द बाइनरी ट्री। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम हियर। आप यहां से कंपैरिजन स्टार्ट करो, नीचे से। आप जो आपका ट्री है उसका नीच डेप्थ जो है, डेप्थ में आप लेफ्ट हैंड साइड से आप कंपैरिजन स्टार्ट करो, ठीक है। नाउ यू हैव टू चेक, ये आपका फाइनल ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, ठीक, ठीक है। सी नाउ सी, ये आपका इस तरीके से आपका बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। ये बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया, दैट मींस नाउ यू हैव टू स्टार्ट द कंपैरिजन फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट ट्री, लेफ्ट मोस्ट सब ट्री, ठीक है। तो देखिए नाउ ये आपका ट्री है 1 12 9 5 6 एंड 10। अभी आपको यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करो 5 से, यहाँ से चेक करो 5 का रूट क्या है, 12 है। 12 के चाइल्ड क्या है, 5 है एंड 6 है। 12 के चाइल्ड क्या है, 5 है और 6 है। तो 12 ऑलरेडी बड़ा है 5 और 6 से, नो चेंज, कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अभी इसके राइट हैंड साइड में देख लो, 1 के राइट हैंड साइड में, 1 के राइट हैंड साइड में क्या है, 1 के राइट हैंड साइड में 9 है और 9 के नीचे क्या दिया है, 10 है। 9 से 10 क्या बड़ा है, तो अभी ये क्या करना पड़ेगा आपको, 10 आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे, देखिए 10 आप ऊपर शिफ्ट करोगे और 9 को नीचे शिफ्ट कर दोगे। तो यहाँ पे 10 आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया और 9 आपने नीचे शिफ्ट कर दिया। नाउ अभी चेक करो, 1 रूट है, 1 के बाद इसका 1 का चाइल्ड क्या है, 12 है और 1 का चाइल्ड 10 है। सो 1 से 12 भी बड़ा है और 10 भी बड़ा है, तो ज्यादा बड़ा कौन सा एलिमेंट है, 12 है। तो आप क्या करोगे, ये 12 को ऊपर शिफ्ट करोगे, यानी 12 को आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे और 1 को आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे। देखिए 12 को आप जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे और 1 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, फिर से आपका नीचे वाला ट्री चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जब आप यहाँ पे 12 शिफ्ट करोगे, यहाँ पे आपने 12 शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे आपने 1 शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर इसका और नीचे देखो, फिर 1 के पास क्या आएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 1 फिर से क्या होगा आपका, 1 6 की जगह जाएगा और 6 आपका 1 की जगह चले जाएगा। इस तरीके से आपका ट्री बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका फाइनल अगर ट्री देखते हो तो नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपका फाइनल ट्री आया है, ठीक है। सी इस तरीके से चेंज हुआ, ठीक है। आपने क्या चेक किया, पहले पहले चेक किया कि नीचे में गए हम लोग, ठीक है। 12 के पास क्या क्या चाइल्ड थे हमारे पास, 12 के पास चाइल्ड थे, 12 के पास चाइल्ड थे 5 और 6, तो नो चेंज। फिर 9 के पास चाइल्ड था 10, तो 10 को ऊपर ले गया, 9 को नीचे ले गया, यहाँ तक पहुंचे। यहाँ ये स्टेप में क्या कर लिया हम लोगों ने, ये हो गया, ठीक है। यानी इतने पार्ट में देखा तो कोई चेंज नहीं मिला और इतने पार्ट में देखा तो हमें चेंज मिल गया, तो 10 को ऊपर कर दिया, 9 को नीचे कर दिया, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ऐसा करने के बाद, ऐसा होने के बाद फिर आप नीचे देखिएगा, ये ऐसा होने के बाद आपका ट्री इस तरीके से मिला। इस तरीके से मिलने के बाद आप यहाँ चेक करेंगे तो 12 और 1, ठीक है। 1 का चाइल्ड क्या है, 12 है और 10 है, तो आपने क्या कर दिया, 12 को आपने ऊपर कर दिया और 1 को आपने नीचे कर दिया, ठीक है। 12 यहाँ से ऊपर चले गया और 1 यहाँ का नीचे आ गया, ठीक है। नाउ फिर से चेक करो, 1 के बाद 1 के पास क्या है, 5 एंड 6 है, तो फिर क्या हो जाएगा नीचे में, नीचे में अगर आप चेक करोगे, नीचे में आप चेक करोगे तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से चेंज हुआ, यानी आपका 1 नीचे आ गया और 6 ऊपर आ गया, यानी फाइनली पहला स्टेप आपका परफॉर्म होने के बाद देखिएगा 12 सबसे ऊपर में आ गया, 12 सबसे ऊपर में आ गया। यानी आपका जो अरे है उसमें क्या क्या है, अभी देखिए अरे के एलिमेंट्स क्या है, पहले आपने 12 को लिया, 12 के बाद आपने 6 को लिया, उसके बाद आपने 10 को लिया, उसके बाद आपने 5 को, 1 को, देन 9 को, यानी इस तरीके से आपका अरे, अरे में ये एलिमेंट्स आ गए आपके, यानी आपने एक एक एलिमेंट उठाया। पहला एलिमेंट क्या है 12, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद क्या है, यानी ऐसे आप रो वाइज एक, उसके बाद दिस वन, उसके बाद दिस वन, इस तरीके से आपने एक एक हॉरिजॉन्टली आपने सारे वैल्यूज को उठाया। सारे वैल्यूज को उठाने के बाद द एलिमेंट्स आर 12 6 10 5 1 एंड 9। अभी क्या करना है आपको, फिर 12 जो आपका फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट आया इसको रिप्लेस करना है। ये एलिमेंट उठा के आपको अरे में से कहां पे डालना है, ये 9 पे डालना है, ये 9 पे डालना है। दैट मींस ये 9 पे डालना है, दैट मींस 9 आपका, ये 9 आपका यहाँ पे चले गया, 12 आपका वहां पे चले गया, दैट मींस 12 का फिक्स पोजीशन हो गया। तो पहले कौन से पोजीशन पर रहने वाला है, हमेशा हमेशा 12 आपका फिक्स पोजीशन पर रहने वाला है। अभी 12 को आपको कंसीडर नहीं करना है नेक्स्ट सॉर्टिंग के लिए। ये आपका पूरा जो है ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि 12 आपका हाईएस्ट एलिमेंट आ गया, 12 को आपने 9 के साथ रिप्लेस किया, ये 12 को आपने 9 के साथ रिप्लेस किया, दैट मींस आपका अभी अरे में डेटा एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे आपके पास, फिर 9, फिर यहाँ पे आया आपका 6, उसके बाद ये आपका 10, ये आपका 10 है, ठीक है।
तो उसके बाद आपके पास 5 है, उसके बाद आपके पास 1 है, और फाइनली आपका यहाँ पे गया है 12। ठीक है, इस तरीके से आपका ये अरे है। तो ये 12 जो है, ये अभी सॉर्टेड में आ चुका है। व्हेन इज हैविंग द फिक्स पोजीशन दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड ऑन द 5 नंबर, 5 नंबर को स्टोर्ड है। अभी नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है दैट इज 9 6 10 5 एंड 1, अभी आपको सेकंड स्टेप में फिर से बाइनरी ट्री बनाना है। ये हो गया पूरा फर्स्ट स्टेप। नाउ इन द सेकंड स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री। किसके लिए, 9 6 10 एंड 5। ये जो 9 6 10 5 एंड 1 है, इसके लिए आपको फिर से बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम द लोवेस्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन स्टार्ट करो। ठीक है, देखो कि आपको रूट में क्या लेकर आना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेकर आना है। ठीक है, सो सबसे रूट में क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू लेकर आना है। फिर से जो भी हाईएस्ट वैल्यू आएगा तो आप सेकंड लास्ट एलिमेंट से क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। रिप्लेस करने के बाद आपको जो अरे मिलेगा दैट मींस आपको सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, 2 एलिमेंट आपके सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। फिर जो बचा हुआ है फिर से उसका ट्री कंस्ट्रक्ट करो, फिर से नीचे से कंपैरिजन स्टार्ट करो। कंपैरिजन करते करते रूट पे आपको सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, फिर से उसको लास्ट एलिमेंट के साथ क्या करो, आप रिप्लेस करो। इस तरीके से आपका हीप सॉर्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, जो भी डेटा एलिमेंट है वो एलिमेंट आपके सॉर्टेड में आ जाएगा। व्हाट द पॉइंट। सो आपका ये हो गया मैक्स हीप ट्री। मैक्स हीप ट्री में क्या आप नीचे से कंपैरिजन करते चल रहे हैं कि रूट में हमेशा बड़ा वैल्यू आना चाहिए। बड़ा वैल्यू आप कंपैरिजन करते करते आपका जो सबसे बड़ा वाला रूट देखते हैं, सबसे मेन रूट है, तो सबसे मेन रूट में आपका जैसे यहाँ पे आपको 12 मिला है, यहाँ पे आपको 12 मिला है। सो आपको रूट में सबसे बड़ा वैल्यू लेकर आना है। जैसे बड़ा वैल्यू आ गया तो आप उसको रिप्लेस करो लास्ट एलिमेंट के साथ। रिप्लेस करने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट है फिर से उसका बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करो, फिर से कंपैरिजन स्टार्ट करो। ऐसे करते करते आपका एक समय ऐसे आएगा कि आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर दैट एलिमेंट शुड बी ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर, तो आपका अरे में पूरे एलिमेंट जो आएंगे वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया मैक्स हीप ट्री। ठीक है, इसमें आपने मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर लेकर आने की कोशिश की, आपने मैक्सिमम एलिमेंट आपने सबसे रूट में पेस्ट किया, या फिर सबसे मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा वो आपने रूट में डाल दिया। ठीक है, लेकिन मीन हीप ट्री क्या होता है, जब आपको डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो आपको सबसे छोटा डेटा आपको रूट में लाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्या किया, ये इसमें ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट देखा हमने और उसमें उसको हमने रूट में डालते चले गए। ठीक है, चेक किया कि अगर रूट में डेटा छोटा है एज कम्पेयर टू इट्स चाइल्ड, तो चाइल्ड का डेटा रूट में पेस्ट करते गए। ऐसे करते करते हम लोगों ने क्या किया, सबसे जो रूट है, जो ऊपर वाला रूट है, सबसे टॉपमोस्ट पे जो रूट है उसका वैल्यू सबसे बड़ा आ गया। लेकिन आप मीन हीप ट्री एंड अगर आपको डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे रूट नोड पे जो भी रूट नोड है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, तो देखिएगा आप यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहां से जब आप स्टार्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मिनी आपको इसको मिनी बनाना है, यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो पहले तो आपने ये ट्री बना लिया, इस तरीके से आपका ट्री बन जाएगा। ट्री बनने के बाद आप नीचे से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, अभी ये 5 का रूट क्या है, 12 रूट है और इसके चाइल्ड क्या है, 5 एंड 6 है। तो 12 बड़ा है, 12 के बाद उसके चाइल्ड में क्या है, 5 और 6 है। 5 और 6 में से सबसे छोटा कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो आप 12 की जगह क्या क्या पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे। ठीक है, और 12 5 की जगह चले जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही 9 और 10, छोटा कौन सा है, 9 है। ऑलरेडी 10 9 10 से छोटा है, तो ऑलरेडी 9 छोटा है। फिर आप क्या करोगे, 5 और 9 को कंपेयर करो 1 से। ठीक है, 1 से 5 ऑलरेडी बड़ा है, 1 से 9 ऑलरेडी बड़ा है, तो 1 ऑलरेडी इससे छोटा है। ठीक है, सो आपका 1 ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को आप रिप्लेस करोगे इसके साथ, लास्ट एलिमेंट के साथ, दैट इज 10 के साथ। तो जो भी आपका अरे आएगा उसमें 1 आपका ऑलरेडी हैविंग द फिक्स पोजीशन, 1 का पोजीशन फिक्स रहेगा, जो आखिरी लोकेशन पे स्टोर रहेगा। फिर बच्चे वाले जो एलिमेंट है उसका आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। लाइकवाइज we need to construct the binary tree, apply the sorting technique, apply the sorting mechanism, and likewise you have to find out the highest element or the lowest element according to the ascending or descending order, and finally you will get the sorted elements. That means suppose if you have the 6 element, so you need to perform the 6 step, आपको 6 step perform करनी पड़ेगी। जितने number of elements है उतने number of steps आपको perform करनी पड़ेगी for the sorting of data elements. So likewise we have to sort the data elements. Hope everybody understood the concept of heap sort method, how we can sort the data element using the heap sort method. So with this, thank you one and all. Thank you.